بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین، اہل بدعت کے بناسپتی مناظر، کذاب زمانہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے موجودہ دور کے ایک مناظر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کچھ سیکنڈوں کی گفتگو آپ سماعت کریں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو محدود کرنا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی گندی سوچ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے ہادی، ہمارے مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو گھٹانا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسی سوچ لے کر ابو جہل والی ایسی گھٹیا گفتگو کر رہا ہے، وہ ذرا آپ سماعت کریں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ ایسے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم نے تو کیا ہے، کبھی بات ہو تو ان سے پوچھیں یار وہ چیزیں لکھ کے ہمیں دے دو آپ جو اللہ جانتا ہے اور حضور نہیں جانتے۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں 5، 10، 15 پیس ہمیں لکھ کے دے دو کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، تو یہ پھر اس وقت کہے گا بھی مہلت دو، اور پھر آپ کو زندگی بھر یہ ملے گا نہیں۔ بھائی تو مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے، خدا کا علم زیادہ ہے، اور تو پھر بتا فلاں باتیں خدا تو جانتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ التحیت والتسلیم والتکریم وہ نہیں جانتے، صاف کہہ دے لیکن نہیں بولے گا۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ نے اہل بدعت کے بناسپتی مناظر مولوی ابو ایوب صاحب کی گفتگو کو سماعت فرما لیا ہے، جس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو گھٹانے کی چکروں میں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو کم کرنے کے چکروں میں ہے۔ کہہ رہا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم نے تو کیا ہے۔ ابو ایوب صاحب اپنی باطل نظریات کی دیوبندی عوام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم نے کیا ہے۔ کس بات کا؟ کہتا ہے کہ کبھی بات ہو تو ان سے پوچھیں، یعنی کہ اہل سنت بریلوی سے ان سے پوچھیں یار وہ چیزیں لکھ کے ہمیں دے دو آپ جو اللہ جانتا ہے اور حضور نہیں جانتے، یہ لکھ کے ہمیں دے دو۔ ایسی کون سی چیزیں ہیں 5، 10، 15، 20 لکھ کے دے دو کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ۔ پھر ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ بات کرو گے تو بریلوی آدمی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، بھاگ جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس اہل بدعت کے بناسپتی مناظر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ تو آئیے اس کو اپنے گھر کی ذرا سیر کراتے ہیں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تول رہا ہے اور علم مبارک کو گن رہا ہے اور علم مبارک کو محدود کر رہا ہے اور علم مبارک کو کم کرنے کے چکروں میں ہے، جبکہ یہ تو ابو جہل والی سوچ ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ابو جہل نے بھی ساری زندگی اسی پر زور دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہو جائے، معاذ اللہ آپ کی شان کم ہو جائے، آپ کا مقام کم ہو جائے، اور آپ کا علم مبارک کم ہو جائے، اور آپ کے علم مبارک پر طرح طرح کے
इल्ज़ामात लगा दिए जाएं। ये तमाम के तमाम अबू जाल पार्टी के आदमियों की यही सोच थी, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक की भी यही सोच थी कि किसी तरीके नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कम हो जाए, ये उनकी सोच थी। तो वही सोच के मालिक अहले बिदत के मौलवी अबू अयूब साहब हैं, जबकि इनकी सोच पूरी कभी भी नहीं होगी। क्यों? जिसका हामी और नासिर मेरा अल्लाह हो, जिसके बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वरफ़अना लक ज़िक्रक वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फतरदा। मुतअद्दिद कुरान पाक की आयत के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम, आपका जिक्र यानी हमेशा बुलंद होता रहेगा, यानी कि मिटने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पर कोई आंच भी नहीं आएगी। तो अबू अयूब साहब को अपने घर की सैर कराते हैं। इस मौलवी अबू अयूब साहब की बात पर मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब लिखते हैं, बिलखुसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उलूम अता फरमाए गए हैं उनका तअद्दुद व शुमार इहाता ये इंसानी से बैर है, उन्हीं गिनना और शुमार करना हमाकत है। नाज़रीन, ये इबारत बहुत ही काबिल गौर है। मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब लिखते हैं कि उनका तअद्दुद व शुमार इहाता इंसानी से बाहर है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को शुमार करना इंसानी सोच, इंसानी फिक्र से बहुत दूर है। फिर कहते हैं कि उन्हीं गिनना, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को गिनना, जैसे ये अबू अयूब साहब अपने क्लिप के अंदर कह रहे थे कि वो 5, 10, 15 चीज़ें बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, माज़अल्लाह। तो मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहते हैं कि उन्हीं गिनना और शुमार करना हमाकत है। मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब अहले बिदत के बनास्बती मुनाजिर मौलवी अबू अयूब साहब के मुंह पर तमाचा मारते हुए लिखते हैं कि उन्हीं गिनना, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को गिनना और शुमार करना हमाकत है। यानी कि सईद अहमद जलालपुरी साहब की बात से मौलवी अबू अयूब साहब बेवकूफ़ आदमी है। फिर मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब कहते हैं नफ़ी भी बदअक़ीदगी है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को गिनना और शुमार करना ये हमाकत है, बेवकूफ़ी है, और नफ़ी भी बदअक़ीदगी है। यानी कि मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब की बात से मौलवी अबू अयूब साहब बेवकूफ़ आदमी और बदअक़ीदा आदमी है। आगे मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब कहते हैं हाँ, तमाम उलूम अतई हैं, ज़ाती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जिंदा करामत है कि आपके अक़ीदे को दुश्मन भी तस्लीम कर रहे हैं। ये आखिर में कहते हैं कि हाँ, तमाम उलूम अतई हैं, ज़ाती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यही नज़रिया अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का है। फतावा ख़त्म नबूवत जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 40 है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तहक़ीक़ व तशरीह मौलाना फ़खरुज़्ज़मान, मौलाना अब्दुल सत्तार हैदरी, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान रहमानी, इन्होंने इस फतवा की तहक़ीक़ की और तशरीह की है 3 देव के बड़े बड़े मौलवियों ने, और मुरत्तिब है मौलाना मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब। फतावा ख़त्म नबूवत जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 40 है। मौलवी अबू अयूब साहब अपने उसूलों से और अपना जो इसने मुरवजा उसूल बनाया उसी से और मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब की बात से बेवकूफ़ साबित हुआ और बदअक़ीदा आदमी साबित हो रहा है। ये इसका अपना उसूल है, हमारी तरफ से कबूल फरमा लें। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, मौलवी अबू अयूब साहब तो कहते हैं ना कि बरेलवियों से पूछो 5, 10, 15 चीज़ें बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है और अल्लाह को पता है, कोई ऐसी चीज़ें बताओ। तो मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी साहब तो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ी है और बदअक़ीदगी है। तो आगे चलिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, कशकोल मारफत, तालीफ मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक़्क़ानी देवबंदी साहब। ये देव के बहुत बड़े मौलवी गुजरे हैं और उनकी किताब है। सफ़ा नंबर 435 पर कुछ यूँ लिखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात
आमियाना गुफ्तगू का मौजू बने तो खुदा का अजाब आता है। और ये भी अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब मौलवी अबू अयूब बिदती के मुंह पर तमाचा मारते हुए लिखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मौजू बनाया जाए, आमियाना गुफ्तगू का मौजू बनाया जाए, तो खुदा का अजाब आता है। तो ये तो बिल्कुल आमियाना गुफ्तगू थी जो अबू अयूब साहब खुद कह रहे थे कि 5, 10, 15 चीज़ें ऐसी बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना हो, कोई ऐसी चीज़ें बताओ। ये अबू जहल वाली सोच है। आगे लिखते हैं सफ़ा नंबर 435 पर मौलवी अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब लिखते हैं, जब किसी मुल्क में ज़ात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिफ़ातुहुल करीम को मौज़ूए बहस बनाया जाता है तो वो पूरा मुल्क अजाब की लिपेट में आ जाता है। ये तमाम के तमाम देव के मौलवियों के मुंह के ऊपर मौलवी अब्दुल क़य्यूम हक्कानी का तमाचा है कि जब किसी मुल्क में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिफ़ातुल करीम को मौजू बहस बनाया जाता है तो वो पूरा मुल्क अजाब की लिपेट में आ जाता है। अब ये तमाम के तमाम देव के बनास्पति मुनाजिरीन हजरात हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके इल्म मुबारक पर, आपके कमालात पर एतराज़ करने पर तुले हुए होते हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के चैलेंजबाजी इनकी जारी सारी रहती है। तो अब्दुल क़य्यूम साहब कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को मौजूए बहस बनाया जाता है तो वह पूरा मुल्क अजाब की लिपेट में आ जाता है। फिर लिखते हैं, ऐसे नाज़िक मौजू पर नौज़ाइदा लिखते हैं कि ऐसे नाज़िक मौजू पर नौज़ाइदा खाम इल्म वाले बहस करते हैं तो दुख होता है। यानी कि नई पैदावार के आदमी जब इस मौजू पर बहस करते हैं तो दुख होता है। ये मौलवी अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब अपना रोना रो रहे हैं कि ऐसे नाज़िक मौजू पर नौज़ाइदा खाम इल्म वाले बहस करते हैं, यानी कि कम इल्म वाले और नई पैदावार के मौलवी जैसे अबू अयूब साहब हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस इल्म मुबारक पर इतराज़ कर रहा था। कहता है कि कोई ऐसी चीज़ें बताओ 5, 10, 15 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है और अल्लाह को पता है। ये इसकी गंदी सोच है अबू जहल वाली, जिसकी शान को, जिसकी अज़मत को, जिसके मकाम को, जिसके इल्म मुबारक को खुद रब्बे ज़ुल जलाल बयान फरमाते हैं, उसकी शान को, उसके इल्म मुबारक को कौन कम कर सकता है, कौन घटा सकता है। ये तो खुद बेचारे मर कर मट्टी हो जाएंगे, लेकिन रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपकी शान, आपका इल्म मुबारक हमेशा बुलंद होता रहेगा। आखिर के अंदर मैं मुफ्ती बगदाद मुफ्ती अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े एक मुफस्सिर हैं और मुहद्दिस हैं, बगदाद के बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं रहमहुल्लाह। आप फरमाते हैं अनज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। फरमाते हैं आलिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना व मा यकून। फरमाते हैं कि इस आयत से ये साबित हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक मा कान से लेकर व मा यकून तक, यानी जो हो चुका और जो होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम का तमाम इल्म अता फरमा दिया है। ये सैयद महमूद अलूसी रहमहुल्लाह की इबारत मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, वरना मुतअद्दिद इसी तरह की इबारात मौजूद हैं, ये इख्तिसार के साथ मैंने पेश कर दी है। और अगर सैयद महमूद अलूसी रहमहुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और आपके मकाम को बयान किया तो देव के मौलवियों से ये भी बर्दाश्त नहीं हो सका। दारुल उलूम के देवबंद के मुहतमिम कारी मोहम्मद तैयब साहब की किताब है इल्म गैब। उस इल्म गैब के अंदर कारी तैयब साहब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद उर्फ देवगंद कहते हैं कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे इल्म माकाना यानी कि माकाना व मा यकून साबित करता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, माअज़ल्लाह।
یعنی کہ ما کان و ما یکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ثابت کرنا، قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنا ان کا بغض ہے. تو قاری طیب صاحب کے فتویٰ سے اور مولوی ابو ایوب صاحب کے اصول سے متعدد دیوبند کے خود مولوی اس فتویٰ کی زد میں آ رہے ہیں، اور بہت سارے محدثین اور بہت سارے مفسرین کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم ما کان و ما یکون ثابت کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو وہ اہل علم حضرات سے مخفی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کن کن مفسرین نے، کن کن محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ما کان و ما یکون ثابت کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جبکہ دوسری جانب قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ما کان اور وما یکون کا علم ثابت کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، معاذ اللہ. تو مولوی ابو ایوب صاحب کے اصول سے اور قاری طیب صاحب کے فتویٰ کی زد میں سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ یعنی قاری طیب کے فتوے کی زد میں آ رہا ہے، کیونکہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ علم ما کان و ما یکون یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. اپنی کتاب، اپنی تفسیر روح المعانی شریف کے اندر آپ نے لکھا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے. آمین.